Good morning and welcome to another session. In previous part, basically what we have discussed was the combo box and slider. We have created a program with slider as well as with a combo box also. Now we will be creating a list box. Okay, so let's come up to the list box. This one is the list box. Okay, I am just putting here a button and one text bar. In this text box, whatever you write in this text box, after clicking the button, it will go up. ओके, हमने डिस्कस किया था कि हमको जब वेरिएबल्स यूज़ करने होते हैं तो इसके लिए हमें क्लास विज़ार्ड पे जाना पड़ता है और क्लास विज़ार्ड के अंदर हमें सेलेक्ट करना होता है मेंबर वेरिएबल्स. ओके, इन दिस मेंबर वेरिएबल्स हमको वेरिएबल किस किस चीज़ के लिए चाहिए? लिस्ट के लिए. ओके, लिस्ट के लिए I have taken one variable, but here I don't want to use the value of the list. I want to control the list. मीन्स मैं उसमें रन टाइम में एलिमेंट्स ऐड करना चाहता हूँ, इसलिए हमने इसको टाइप डिफाइन किया कंट्रोल. ओके, नाउ जबकि मुझे आईडीसी एडिट के अंदर इसकी वैल्यू से मतलब है. ठीक है, so I have defined a value for this. Okay, now come to be and clicked. Now whenever you click on this button, this function will be called. यहाँ पे हमें क्या करना है? Update data true. This is to read something from your window. Then m_lst dot add string. Well, whenever you are writing everything okay, then you will automatically see that it is showing the IntelliSense. ठीक है, here I don't require to update the data. मीन्स अपडेट डेटा फॉल्स देने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, it will work in this way only. Okay, let's check. So go to execute and it is asking to create a file. Executable file is created. I have given first value, that is ABCDE. On clicking the value, you can see here it is passed on to the upper screen. ABCDE1. Okay, I have clicked 2 times and you can see it is passed 2 times. ऐसा नहीं होना चाहिए था ना, एक ही बार आना चाहिए. सो व्हाट शुड वी डू? जैसे ही हम इसको एडिट कर देते हैं, यानी इस वैल्यू को उठा के यहाँ ले जाते हैं, इसके बाद हमको क्या करना चाहिए? m_txt को ब्लैंक कर देना चाहिए. सो m_txt is equal to blank, or you can
write it like dot format txt dot format, and here you can define blank. So both the methods are okay, and after doing this, just mention here update data false. Sorry. Execute किया, yes, and now you can see here ABC, and here you see it is blank. DEF, click, and you can see after clicking it goes blank. Okay, so in this way we can use the list. Now अगर आप लिस्ट आइटम को भी इस पे होने वाले इवेंट्स को अगर यूज़ करना चाहते हैं, लिस्ट आइटम में से किसी चीज़ को क्लिक किया गया, आप उसको हैंडल करना चाहते हैं, या इस तरीके का कुछ भी, तो यू कैन सेलेक्ट हियर दैट जैसे ही कुछ चेंज हो तो क्या एक्टिविटी हो, या लिस्ट के ऊपर डबल क्लिक हो तो क्या एक्टिविटी हो। आप इस तरीके से इसके हर पार्ट को रीड मतलब अपने हिसाब से फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं, और जिस चीज़ पे फंक्शन डिफाइन करेंगे you can use that part only. Okay, now let's come back to the slides. Here we have already discussed about slider. Slider normally is used to control the volume of your microphone and all. इसमें जो है क्योंकि साउंड कंट्रोल करते हैं तो इसके साथ एक ग्राफिकल डिस्प्ले होता है, वो 0 से 100% तक शो करता है, ठीक है। और साउंड की वैल्यू जो हम डिफाइन करते हैं वो परसेंटेज में डिफाइन करते हैं, ठीक है। बट यू कैन यूज़ इट फॉर एनी काइंड ऑफ वैल्यू, वेर एवर यू कैन हैव लिमिटेड रेंज, you can use a slider. Now handling files. The question arises, how we can handle file in VC++ application. Just see, file handling can be done either in SDI application or in MDI application. It is not done in your dialog application. So we'll be talking about how to create your MDI and SDI applications. So select here MDI or SDI as a, whatever you like. I'm coming on to that. Okay, so just close this project, go to files, then go to close workspace. Okay, go to new, select here another workspace, MFC.exe, and here project name, for example VC underscore MDI application 1. Okay, now in SDI or MDI application you will find some more terms are there. Here you see it is asking that do you want to include any kind of database support or some external include files or something like that. ठीक है, अगर आप इस तरीके का कुछ चाहते हैं
तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि येस आई वांट हेडर फाइल्स ओनली, आई वांट टू हैव डेटाबेस सपोर्ट, और आई वांट टू हैव डेटाबेस विदाउट फाइल सपोर्ट। ओके, डेटाबेस विदाउट फाइल सपोर्ट एंड विद फाइल सपोर्ट का मतलब ये है कि अगर विदाउट फाइल सपोर्ट कर रहे हैं, that means there will be no file created by your application, and if you are selecting as file support, then it has a file support, means there will be a file created by your application। ठीक है, अगर आप डेटाबेस के साथ जोड़ना चाहते हैं तो ये डेटा सोर्स आपसे मांगेगा, एंड यू कैन कनेक्ट टू एनी काइंड ऑफ डेटाबेस, स्पेसिफिकली ODBC से ये बड़े आराम से कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, बट I don't want to connect to database right now. Now, moving ahead, you will find here that there are two kind of applications here. Either it is a container or it is a self application which runs over a container. Container क्या होता है? कुछ applications ऐसे होते हैं जो कि किसी दूसरे एप्लीकेशन के हेल्प से एग्जीक्यूट होते हैं। ठीक है, तो उन एप्लीकेशंस के लिए हमें कंटेनर्स क्रिएट करने होते हैं। ठीक है, देयर आर सम फुल सर्वर्स एंड मिनी सर्वर्स आल्सो। सो सर्वर एप्लीकेशंस अगर क्रिएट कर रहे हैं तो वी कैन हैव सेलेक्ट योर मिनी सर्वर और फुल सर्वर एज पर आवर नीड। ठीक है, कंटेनर नॉर्मली आपके ActiveX के लिए यूज़ किए जाते हैं। जब आप ActiveX कंट्रोल क्रिएट कर रहे हैं, एट दैट टाइम यू विल ट्राई टू यूज़ कंटेनर। ओके, अनदर ऑप्शन इज़ ActiveX कंट्रोल, एंड ActiveX कंट्रोल जो आपका होता है ये कुछ एक्सटर्नल बने बनाए प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे विंडोज़ मीडिया प्लेयर है या आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर है। आप चाहते हैं कि आप अपने एप्लीकेशन के ऊपर उसको भी यूज़ कर सकें, तो in that case what we do is we tick this ActiveX control, and finally in result what we get is we can easily use whatever the codes are there on Windows Media Player और Internet Explorer। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। So here you can find different type of toolbars and different type of buttons are asked. For example, just start from here. Docking toolbar is this one, that is additional toolbar like this। so ये वाला है, इस तरीके के टूलबार को हम डॉकिंग टूलबार बोलते हैं। इसके अलावा इनिशियल स्टेटस, ये नीचे जो स्टेटस बार आता है आपका, इसके लिए होता है। हम पहले डिस्कस कर रहे थे मेनू बार के साथ में कि मेनू आइटम को सिलेक्ट करने पे हम अपने हिसाब से यहाँ पे मैसेजेस दिखा सकते हैं, एंड ऑल दीज मैसेजेस आर शोन ऑन टू दिस स्टेटस बार। देन देयर इज़ प्रिंटिंग सपोर्ट। इफ़ यू वांट टू बेसिकली यूज़ प्रिंट और प्रिंट प्रीव्यू ऑन टू योर एप्लीकेशन, यू कैन चेक इट। ठीक है, इसके अलावा अगर आप अपने पास से कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव हेल्प देना चाहते हैं, यानी हेल्प के अंदर इंडेक्स, यूजिंग हेल्प, इस तरीके की चीज़ें देना चाहते हैं, सो यू कैन पुट हियर टिक। कंट्रोल्स 3D या 2D किस तरीके का रखना चाहते हो ये आप पे डिपेंड करता है, बट प्रेफरेबली इज़ 3D। देन if you want to connect more than one application located at different places or different computers, then you can use message API और Windows Socket। दो मेथड्स यूज़ किए जाते हैं दो एप्लीकेशंस को आपस में जोड़ने के लिए, या तो Windows Socket यूज़ कर सकते हैं या मैसेजिंग API यूज़ कर सकते हैं। Now, in your MDI applications, actually we have two standards, MFC and Windows Explorer. So we can select Windows Explorer standard or we can select MFC standard. So whatever you like, you can select here. Then do you want to have comments wherever you can change the code? If yes, select yes. If you want that कोई भी फालतू का कमेंट नहीं लिखा होना चाहिए, उससे कोड का साइज़ बड़ा होता है, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप इसे नो कर दीजिए। ठीक है। सेकेंडली MFC लाइब्रेरीज़ की बात करें अगर, तो MFC लाइब्रेरीज़ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, दो तरीके की हैं।
या तो शेयर DLL होंगी या स्टैटिक लिंक लाइब्रेरीज होंगी। अगर शेयर DLL होंगी तो एक ही कोडिंग को आप बार बार यूज़ कर सकते हैं। अगर सपोज़ आपके पास 4-5 एप्लीकेशंस आप क्रिएट कर रहे हैं और सब में कोई ख़ास चीज़ बार बार हो रही है, ठीक है, तो उस चीज़ के लिए आप शेयर DLL यूज़ करते हैं तो उन सभी एप्लीकेशंस के अंदर सेम DLL फाइल यूज़ हो जाएगी। Now these are the classes that are being created. आपकी एक एप्लीकेशन क्लास है, व्यू क्लास है, देन मेन फ्रेम क्लास है, चाइल्ड फ्रेम क्लास है और डॉक्यूमेंट क्लास है, ठीक है। अगर इस एप्लीकेशन के एग्जीक्यूशन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले आपकी एप्लीकेशन क्लास कॉल होती है। इसके बाद ये क्लास व्यू क्लास और डॉक्यूमेंट क्लास को कॉल करती है। व्यू क्लास स्क्रीन पे क्या दिखेगा वो डिज़ाइन करती है, तो इसके लिए सबसे पहला काम ये मेन फ्रेम को डिज़ाइन करती है। मेन फ्रेम आपका ये वाला हिस्सा होता है, ठीक है। इसके बाद चाइल्ड फ्रेम कॉल होता है। चाइल्ड फ्रेम पे नॉर्मली डॉक्यूमेंट क्लास से आने वाले मैसेजेस को दिखा दिया जाता है, ठीक है। सो हियर यू कैन सी कि जैसा हमारे पिछले वाले एप्लीकेशन में था, यहाँ पे बिल्कुल वैसा कुछ नहीं हो रहा है। ऑल्दो यू कैन सी द सिमिलर आइकन्स हियर, बट इफ़ यू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम you will find some other screen. हमने एग्जीक्यूट किया and in the process of execution you will find ये स्क्रीन हमारी स्क्रीन पे कहीं विजिबल नहीं थी, ठीक है। MDI एप्लीकेशन है इसलिए इसमें आप जितने चाहें उतनी विंडोज़ खोल सकते हैं, ठीक है। सो विद इन वन एप्लीकेशन यू कैन हैव मल्टीपल विंडोज़ एंड इवन अगर आप इनको अरेंज करना चाहें अपने अकॉर्डिंग तो अरेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप इनमें से किसी एक को बंद करना चाहते हैं तो उसको सेलेक्ट करके कंट्रोल W, एंड अगर सबको क्लोज करना चाहते हैं तो यू कैन क्लोज द होल एप्लीकेशन, ओके। नाउ डॉक्यूमेंट को ओपन करने की बात करें तो इसके लिए हमारे पास डॉक्यूमेंट क्लास होती है और इस क्लास के अंदर हमको किसी भी सोर्स डॉक्यूमेंट को ओपन करना होता है, ठीक है। और व्यू क्लास होती है, ये स्क्रीन पे डेटा आपका कैसे दिखेगा, किस तरीके से वर्कआउट होगा, ये डिफाइन करती है, ठीक है। MFC एप्लीकेशंस की बात करें तो MFC एप्लीकेशन के अंदर डॉक्यूमेंट व्यू आर्किटेक्चर जो है ये आपका दोनों ही पार्ट सेपरेट होता है। डॉक्यूमेंट अलग से क्रिएट किया जाता है या रीड किया जाता है और व्यू अलग होता है, ठीक है। सो ऐसा नहीं होता कि आपने जो फाइल में लिखा हुआ है वो एज इट इज़ ही स्क्रीन पे आएगा। आप उसको रीड करके अपने हिसाब से उसका इफ़ेक्ट कुछ भी डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज इफ़ यू वांट टू ड्रॉ लाइन, ठीक है, तो लाइन ड्रॉ करने के लिए हमारा एक्चुअल मेथड ट्रेडिशनली क्या होता था कि हम उसको एक बिटमैप के अंदर डिज़ाइन करते थे कि इस पिक्सल पे ये कलर, इस पिक्सल पे ये कलर। बट इफ़ वी आर यूजिंग MFC स्टैंडर्ड तो यहाँ पे हम फाइल में केवल स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट बता करके भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अब SDI और MDI एप्लीकेशन के एग्जांपल्स की बात करें तो SDI एप्लीकेशन आपका जो होता है ये सिंगल डॉक्यूमेंट इंटरफेस होता है, यानी इसमें एक समय में एक ही डॉक्यूमेंट खुलता है, जबकि MDI के अंदर कई सारे डॉक्यूमेंट्स खुल सकते हैं। इसलिए SDI एप्लीकेशन के अंदर आपके जो है एक ही फ्रेम होता है, मेन विंडो ही होती है, जबकि इन केस ऑफ MDI एप्लीकेशन देयर इज़ अ मेन फ्रेम एंड देयर इज़ अ चाइल्ड फ्रेम। जो चाइल्ड फ्रेम है, नंबर ऑफ चाइल्ड फ्रेम इंक्रीज करके हम डॉक्यूमेंट्स की गिनती बढ़ा लेते हैं। एग्जाम्पल्स के टर्म्स में आप नोटपैड ट्रीट कर सकते हैं, एक SDI का एप्लीकेशन, ठीक है। और MDI के लिए आप VC++ को ले सकते हैं। VC++ itself as an IDE
और उस IDE का जो इंटरफेस है वो एक MDI है. Now there is a small task for you. You have to define use of slider, and secondly you have to differentiate between SDI and MDI application. You have to actually explain the purpose of MDI application and SDI application. So that's all for today now. Thank you.